Hello, hello everybody. So we are live again, and we were dealing with the chapter of electrolysis in chemistry. Fine. So basically, on every Saturday and Sunday, there will be a lecture on chemistry, and I will be trying to make a lecture on biology on every Friday. Fine. Come on, quickly join the session. Share this with your friends, with your known ones, so that we can start with it as soon as possible. Okay. Now, let me also tell you that we are just not providing you the free lectures. We are also providing you free mock test even. Okay, before that, just tell me whether I'm audible or not. Just tell me whether I am audible or not. Whoever is watching, just tell me whether I'm audible or not. Just a minute. Okay. So, anyways, we can start with the chapter. So, basically, what I was saying is that we are not just providing you the free lectures, we are also providing you free mock test. For that, what you have to do is you have to go to the Google Play Store and download the app MidhaGuru. Once you download the app, you log in into the app, and after you log in into the app, go to the search bar or the search button and type for 10th ICC mock test. There you are going to find all the mock tests in a very sequential manner for subjects like mathematics, physics, chemistry, and biology. All the mock tests are given, basically the questions are extracted from the lines of the Selena book. Selena book is regarded as one of the most, most standard curriculum for ICSE. There are other books also, Goel Publishers and many other. Even you can refer those books, but I feel that Selena is considered as the most important and the most standard book for ICC curriculum because everything is given in a very concise and in a very in a very nice manner. Okay, so I would recommend that we stick to this Selena book, or even if you have any other kind of book, any other belonging to other publishers, you can refer to that book. It depends from school to school even, but anyways, it's fine that uh, you can practice. At least you can practice the questions from Selena publishers. Fine. Now, apart from that, if you have any kind of inquiries, any kind of free mentorship or guidance you want, you can call on this number, or also you can WhatsApp us. We are definitely going to reply you back within 24 hours. Fine. Okay. Now, let's recall some of the things that we have studied in the last two classes. We have understood what are conductors and what are non-conductors. बहुत ही इजी सा चीज़ है जो कि हम लोग अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. कंडक्टर्स वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देंगे. दैट मीन्स सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. जैसे वाटर हो गया, वाटर इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू वो पास होने देता है. जैसे मेटल्स हो गए, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्ट्रीम को अपने थ्रू पास होने देंगे. जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे नॉन कंडक्टर्स हैं. वाई दे आर नॉन कंडक्टर्स? Because they are not going to allow any electricity or any electron stream of electrons to pass through them. तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते. सो एवरीथिंग वी हैव सीन इन आवर जूनियर क्लासेस ऑल्सो. हम लोग क्लास 3 क्लासेस से ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्कस कर चुके हैं. Important terminologies. uh, what we do is, before we start the chapter, we always revise all the important terminologies that are associated with this chapter.
So terminologies like electrolysis, electrolytes, everything was explained in a great detail. Fine. If you have any kind of doubt still, you can just go and check the previous lectures. Yes, hello. Now we have non-electrolytes, substances which cannot conduct electricity, or solutions which cannot conduct electricity through them. They are non-electrolytes. Fine. Now we have talked about ions. Ions are what? Charged species. So we know that there is a neutral atom. When that neutral atom loses or gains one electron or two electrons or any amount of electrons that it needs to be, तो वो अपने ऊपर एक चार्ज डेवलप कर लेता है. उस चार्ज के बेसिस पे हम लोग आयंस को डिवाइड कर दिए हैं इनटू टू कैटेगरीज. वन इज कैटायन एंड द अदर वन इज एनायन. सपोज अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम जब न्यूट्रल था, नाउ what it has to undergo, it has lost one electron and now it has become Na positive. So being a positive entity, I will be calling this as a cation. This is obviously an ion. Ion is any entity or any atom or anything which has charge over itself. ठीक है. जैसे अगर मैं इसका बात करूं तो सोडियम जब न्यूट्रल स्टेट में था, इस पे कोई भी चार्ज नहीं था, तो इट इज व्हाट, इट इज अ न्यूट्रल एटम. इट इज अ न्यूट्रल एटम. बट वंस इट हैज लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन, इट हैज नाउ एक्वायर्ड अ चार्ज. तो हम लोग क्या लिखेंगे आयंस के केस में? एंटिटीज, एंटिटीज और एटम्स which has acquired, acquired a charge, acquired a charge. Now if I talk about a non metal, नॉन मेटल के केस में हम लोग देख सकते हैं कि अगर क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक न्यूट्रल एटम है. क्लोरीन क्या है हमारा? एक न्यूट्रल एटम. नाउ इफ इट गेन्स वन इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? माइनस. सो ये भी क्या है? एक चार्ज एंटिटी है, एक चार्ज स्पीसी है. अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनायन. वाई? बिकॉज इट हैज एक्वायर्ड वन नेगेटिव चार्ज ओवर इट. ठीक है. तो ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे. इलेक्ट्रोड्स भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे. व्हाट वर इलेक्ट्रोड्स? इलेक्ट्रोड्स कैन बी आइदर ग्रेफाइट रॉड, मेटालिक वायर्स या फिर गैस कार्बन रॉड्स. जो हम लोग इस इमेज में देख सकते हैं दैट दिस इज व्हाट, दिस इज एन इलेक्ट्रोड. दिस कैन बी आइदर अ ग्रेफाइट रॉड, अ कार्बन रॉड और अ मेटालिक वायर इवन. ये बेसिकली क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए एक मीडियम, बेसिकली ये एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है. बिकॉज अगर हम लोग एक वेसल लेते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट रख देते हैं, पोर करते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग किसी भी सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते. So in that case, what we do, we put the electrodes, we install the electrodes across the vessel. एंड इसी इलेक्ट्रोड्स के थ्रू एक वायर कनेक्टेड रहता है जो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. जो वो वायर क्या होता है? वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर बैटरी के साथ एसोसिएटेड होता है. देन दिस इलेक्ट्रोड्स बेसिकली प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म और अ मीडियम जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके और इलेक्ट्रोलाइट को डिसोशिएट होने में मदद कर सके. फाइन. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके थे व्हाट आर मेटालिक कंडक्टर्स, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. मेन डिफरेंस जो देखा जा सकता है, बोथ आर बेसिकली बोथ आर कंडक्टर्स. दोनों इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देंगे. मेटालिक कंडक्टर्स व्हाट आर दे? बेसिकली दे आर मेटालिक वायर्स. ठीक है. जैसे अगर मैं कॉपर वायर का बात करूँ, जैसे हमारे घरों में या हमारे रूम्स में अगर हम लोग स्विच ऑन करते हैं, अगर मेन्स में अगर हम लोग स्विच ऑन करते हैं द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग. तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज उसके बैकग्राउंड में देयर इज अ कॉपर वायर विच इज अटैच टू इट. जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं, एक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट. ठीक है. तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटालिक कंडक्शन. और ये किसके वजह से होता है? ड्यू टू अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक नैरो बीम की तरह इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. Whereas इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में हम लोग क्या देखे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स एक्वस सोल्यूशन या मॉल्टन सोल्यूशन के केस में ही हम लोग देख सकते हैं, मॉल्टन स्टेट में देख सकते हैं. जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक बीकर रख देते हैं या फिर एक वेसल रख देते हैं, यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट को पोर करती हूँ, यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट को पोर करती हूँ, तो व्हाट आई कैन सी इज दैट अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए, इलेक्ट्रोड्स इंस्टॉल कर दिए,
So this electrolyte will now get dissociated into constituent ions. That means if I have taken NaCl as an electrolyte here, तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जैसे ही उसे इलेक्ट्रिसिटी मिला, दिस विल गेट डिसोशिएटेड एज Na प्लस एंड Cl माइनस. ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कंडक्शन हो रही है वो बेसिकली किसकी वजह से हो रही है, पॉजिटिव कैटायंस, जैसे यहाँ पे हमारा Na पॉजिटिव हो गया एंड नेगेटिव एनायंस जो कि हमारा हो गया Cl माइनस. ठीक है, ये था हमारा मेन बेसिस. और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, जैसे मेटल्स चाहे वो सॉलिड में हो या लिक्विड में है, वो क्या है, गुड कंडक्टर्स. अब कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, जैसे हमारा हो गया मरकरी. वेराज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को तभी कंडक्ट कर सकते हैं जब वो एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में हो, एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो. ठीक है, तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, इज ऑक्सीडेशन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, दैट इज रिडक्शन. राइट, अब हम लोग हेड करते हैं टूवर्ड्स टाइप ऑफ सेल्स. टाइप ऑफ सेल्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे. देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. एक है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एंड दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. Electrolytic cell, what does it do? It actually changes, it actually converts the electricity, electrical energy. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में. राइट, whereas in case of electrochemical cell we can see that it basically changes chemical energy into electrical energy. It changes chemical energy into electrical energy. So the picture that you can see is basically an electrolytic cell. इसमें हम लोग क्या किए हैं, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट पोर कर दिए हैं. It seems to be a copper sulfate, it seems to be a copper sulfate solution. और हम लोग क्या देखे, हम लोग इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर दिए हैं अक्रॉस द बीकर. ये है हमारा फर्स्ट बीकर, सॉरी ये है हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोड एंड दिस इज आवर सेकेंड इलेक्ट्रोड. एंड हम लोग क्या किए, इसके अक्रॉस वायर्स कनेक्ट कर दिए टू द मेन सोर्स और टू द मेन स्विच जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करवाया जाएगा. नाउ व्हाट विल हैपन वंस दिस electrolyte gets encountered with the electricity, this will actually dissociate. ये जो copper sulfate है ये dissociate हो जाएगा as Cu2 plus and SO4 2 minus में. Fine. Suppose ये electrode, ये there are two electrodes and let's assume that this electrode is actually anode and ये जो electrode है ये suppose है हमारा cathode. And we know that anode क्या है, positive terminal, and cathode हमारा है negative terminal. Fine. हमारे पास दो ions है. First we have cations and एक है हमारे पास anion. Now being a cation, this will migrate to which electrode, cathode के पास, क्योंकि opposite attracts. तो copper कहाँ चल जाएगा, copper का ion rather वो चला जाएगा cathode के पास and वहाँ पे जाके वो deposit होगा. Whereas sulfate चला जाएगा anode के पास. sulfate पे कौन सा चार्ज है, 2 माइनस, यानी कि नेगेटिव चार्ज है, वो माइग्रेट होके एनोड के पास चला जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से कुछ इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है. तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डाले, ये इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स प्रोवाइड किए, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हो गए इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस. तो क्या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में चेंज हो रहा है, वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो गया. इसी वजह से ये जो कंपाउंड है ये टूट गया इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस. तो एक केमिकल चेंज होते हुए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, फाइन. ये था हमारा मेन बेसिस ऑन द प्रोसेस ऑफ हाउ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क्स. तो हमें क्या याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में वो लाइसिस कर जा रहा है, यानी कि वो टूट जा रहा है, डिसोशिएट कर जा रहा है. whereas electrochemical cell में it actually changes the chemical energy into electrical. हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये बहुत और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, बट फॉर योर स्टैंडर्ड यू डोंट हैव टू स्टडी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. हमें क्लास 10th में नहीं पढ़ना है.
That is not given in our syllabus. It's just that you have to keep in your mind that it changes the chemical energy into electrical energy. When you go to your higher classes, there you will understand how this electrochemical cell works. Fine. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे. Now let's come to this thing. Obviously, we have discussed the strong electrolytes and the weak electrolytes as well. जो मेन हमें आज डिस्कस करना है वो है कैरेक्टरिस्टिक. वो हमें डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक. लेट मी जस्ट राइट द हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, तो कौन कौन से पैरामीटर्स, कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में, या फिर हम कह सकते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है इस प्रोसेस में. ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को देखेंगे, किस किस पैरामीटर्स पे ये बेस्ड है, किस तरह से मैकेनिज्म रेगुलेट होता है, एंड किस तरह से आयंस कंपाउंड जो है वो आयंस के फॉर्म में डिसोशिएट करता है. नाउ बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन अ बेसिक थिंग जो कि हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं, बट जस्ट इन अ ब्रीफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि किस तरह से पूरा ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है. नाउ इफ आई मेक अ बीकर हियर, यहाँ पे मैं एक बीकर बना देती हूँ, और अ वेसल और अ कंटेनर जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा. नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज, हम यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए. नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स आर सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिसोशिएट कर जाते हैं, टूट जाते हैं इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयन. नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू प्लेस हियर टू इलेक्ट्रोड्स. यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड एंड एक दूसरा इलेक्ट्रोड इस टर्मिनल पे. नाउ एक चीज हमें जो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोड का जो बॉटम होता है वो दैट शुड बी डिप इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट. ओके, दैट शुड नॉट बी फ्लोटिंग ओवर द इलेक्ट्रोलाइट, राइट? क्योंकि जब तक वो डिप नहीं करेगा अंदर की तरफ, तब तक इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकेगा इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में वो नहीं टूट पाएगा. ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में फिर नहीं टूट पाएगा. यस, हेलो, yeah. Now what am I going to do is, I am going to attach wires across these electrodes, and there is a source of electricity. For now let's take it as a battery. Let's take it as a battery. Fine. अब किसी भी बैटरी में we have seen that a battery has two terminals, a positive terminal and a negative terminal. So suppose if I draw a positive terminal here and the negative terminal to be here, तो what happens कि जो electrodes है ये पहले से defined नहीं होते कि ये एनोड है और ये कैथोड है. ओके, इफ यू ब्रिंग एन इलेक्ट्रोड फ्रॉम द मार्केट, वो पहले से प्री डिफाइंड नहीं होंगे कि क्या ये एनोड है, क्या ये कैथोड है. what I have to do is, basically electrodes are nothing but electrical wires. It can be either graphite rods also, or it can be either gas carbon rods, or electrical wires or electrical rods. इनका जो पोलैरिटी होता है, इनका जो नेचर होता है, दैट इज एक्चुअली डिफाइंड बाय द एसोसिएशन ऑफ द टर्मिनल ऑफ विद द बैटरी. बैटरी के जिस भी टर्मिनल से जो भी इलेक्ट्रोड एसोसिएटेड रहेगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज टू बी दैट इलेक्ट्रोड. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वे. बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर इस इलेक्ट्रोड के साथ अटैच है, तो दिस विल एक्ट एज एन एनोड एंड नॉट एज एन कैथोड. and we can see that battery का ये जो negative terminal है, that is associated with this electrode. So this electrode now will be considered as cathode. This will be considered as cathode. क्यों? क्योंकि ये अब negative terminal है and this is actually positive terminal. So what will happen? Suppose if I have taken NaCl as an electrolyte here. If I have taken NaCl as an electrolyte here. So what will happen? Electricity will pass through this electrodes and NaCl will get dissociated as Na plus and Cl minus. Fine. Na plus and Cl minus में ये dissociate हो जाएगा. Now being a cation, it will migrate to the cathode. Why? Because obviously positive terminals or opposite terminals or opposite charges will attract
each other. तो सोडियम जाके कैथोड के पास माइग्रेट कर जाएगा, whereas chlorine, chloride ion, being an anion, will migrate to the anode. क्लोरीन कहाँ पे माइग्रेट करेगा? टूवर्ड्स द एनोड. तो व्हाट विल हैपन, लेट्स चेक. यहाँ पे बैटरी में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का एक स्ट्रीम इस तरह से फ्लो कर रहा है अक्रॉस द होल सर्किट. इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है, ये बेसिक फिजिक्स है, दैट इलेक्ट्रॉन्स रिलीजेस फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल एंड इट गोज टू द पॉजिटिव टर्मिनल. फाइन, इस तरह से. एंड करंट का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव. एंड करंट का डायरेक्शन होता है ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव. फाइन. अब सोडियम चला गया कैथोड के पास. नाउ व्हाट विल हैपन? इट विल ट्राई टू गेन वन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद नाउ दिस विल बिकम अ न्यूट्रल मेटल, दैट इज सोडियम मेटल. ठीक है. तो ये पहले क्या था? ये पहले कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था. इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये आयंस में टूटा. एंड नाउ व्हेन इट हैज sorry migrated to the cathode terminal, it has now become a metal after gaining one electron here. Whereas this chlorine will migrate to anode. और ये क्या करेगा? इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है. This will try to liberate one electron and become here chlorine gas. Chlorine gas. Now there might be a question कि chlorine 2 कैसे हुआ? Chlorine 2, only one chlorine has migrated. But let me tell you that पूरे सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट में, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ऑफ NaCl तो नहीं होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl होंगे. तो हर एक मॉलिक्यूल गेट्स डिसोशिएटेड एज Na प्लस एंड क्लोराइड आयंस. तो ऐसे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में. तो दो क्लोरीन आपस में कंबाइन होके दिस बिकम्स क्लोरीन गैस. तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि इन कैथोड, एट कैथोड हमेशा क्या होता है? मेटल का इवोल्यूशन होता है यहाँ पे. वेराज एनोड के केस में यहाँ पे नॉन मेटल्स का प्रोडक्शन या इवोल्यूशन होता है. ठीक है. नॉन मेटल्स का प्रोडक्शन या फिर इवोल्यूशन होता है. सो दिस इज one of the most important one. Now if I talk about the if I take into consideration about this oxidation and reduction, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ में समझ लेते हैं, सो दैट वी कैन डॉक्यूमेंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स टुगेदर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलिसिस. yes. Now oxidation क्या था? Oxidation, what was oxidation? It was actually loss of electrons. What was reduction? It was actually gain of electrons. Fine. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हुआ. वी हैव टू बेसिकली ऑब्जर्व कि कौन से इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हुआ एंड कौन से इलेक्ट्रोड में रिडक्शन हुआ. वी कैन इजीली सी कि कैथोड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेनिंग हुआ. इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया गया. किसके थ्रू? सोडियम ने गेन किया. सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया. सो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंसिडर्ड एज रिडक्शन. तो रिडक्शन हमेशा कहाँ पे होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे अवेलेबल होंगे? कैथोड टर्मिनल पे. तो हमेशा रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड में. इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड. वेराज जो ऑक्सीडेशन है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है. कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा रहा है? क्लोरीन हैज माइग्रेटेड टू दिस एनोड एंड देयर इट हैज लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन. सो वी कैन से दैट एट एनोड oxidation takes place and at cathode reduction takes place. तो यही सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमें डॉक्यूमेंट करना है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स. फाइन. तो हम लोग ने क्या क्या सीखा यहाँ से? वी हैव सीन दैट
whenever an electrolyte is encountered or is in exposure to electricity, it gets dissociated into constituent ions, that is cation and anion. इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी हो सकते हैं एंड सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स भी हो सकते हैं. जस्ट लाइक वी हैव सीन इन केस ऑफ NaCl, we what we have done, we have used NaCl as an electrolyte here. इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू पुट or place the electrodes. We have to install the electrodes across the beaker. So यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे और दूसरा इलेक्ट्रोड हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं. इलेक्ट्रोड्स को हम लोग क्या करेंगे, बैटरी या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोग इसको एसोसिएट करेंगे, सो दैट द इलेक्ट्रोड्स द टर्मिनल गेट्स डिफाइंड. बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अगर ये इलेक्ट्रोड अटैच्ड है तो दिस विल स्टार्ट बिहेविंग एज एन एनोड, एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अगर ये इलेक्ट्रोड अटैच है तो दिस विल स्टार्ट बिहेविंग एज कैथोड. नाउ दिस इलेक्ट्रोड्स एक्चुअली प्रोवाइड्स अ मीडियम और अ प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके. Now once the electrolyte has come in contact with this electricity, this will get dissociated as Na positive and Cl negative. हमारे पास दो ions here basically, एक cation and the other one is anion. Being cation, being positive entity, this will migrate to the cathode. कैथोड में जाके वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा and this will become a neutral metal. Whereas this ion, sorry, this anion, that is chloride anion, will migrate to this electrode and will lose one electron, जिस कारण वो क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस बन के तैयार हो जाएगा. फाइन. नाउ लेट मी टेल यू दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में साइमल्टेनियसली टेक प्लेस होता है. दैट मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ रिडक्शन हो रहा है या सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों हो रहे हैं. ठीक है, दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है. फाइन. रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेनिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जा रहा है, बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रिडक्शन, whereas loss of electron is what, oxidation. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है. तो reduction takes place at the cathode, whereas oxidation takes place at the anode. Fine. ठीक है. Okay. Fine. Okay. Fine. ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक whoever is watching, if you have any kind of doubt till here, one can ask. Whoever is watching, anybody who is having a doubt can ask. ठीक है. अब इसी के बेसिस पे, इसी मैकेनिज्म के बेसिस पे वी आर गोइंग टू फॉर्मुलेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे. फाइन. ठीक है. सो सबसे पहला, इज एनीबडी हैविंग एनी डाउट कैन आस्क. ओके. ठीक है. तो नाउ द फर्स्ट पॉइंट in the characteristics, under the characteristics, the first point is what, the electrolyte, the passage of electricity, the passage of electricity will dissociate the electrolyte. किसको dissociate करवाया जाएगा, electrolyte को, into cation and an anion, right. cation and anion में उसे dissociate means to break off, to break, and associate means to join. dissociate means तोड़ देना, associate मतलब join करना. fine. तो basically अगर मैं NaCl का बात करूँ, if I have taken NaCl as my electrolyte, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, दिस विल गेट डिसोशिएटेड एज Na प्लस एंड Cl माइनस. तो हमारे पास एक कटायन है और एक अनायन है. द नेक्स्ट पॉइंट इज जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना एनोड एंड कैथोड में,
वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज की वजह से हो रहा है जो प्रोडक्ट्स बने। जैसे अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में देखूं, यहाँ पे हमारा क्या बना, यहाँ पे हमारा क्लोरीन का गैस बन के तैयार है, और यहाँ पे हमारा क्या है, सोडियम मेटल, सोडियम का मेटल बन के तैयार है। तो ये जो प्रोडक्ट्स बने दो इलेक्ट्रोड्स में, एनोड में हमारा क्लोरीन गैस बना, कैथोड में हमारा सोडियम का मेटल बन के तैयार है। तो ये किसके वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज की वजह से हुआ। कैसे, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये सोडियम मेटल बन के तैयार है। वेयर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया अपने से, तो जिस कारण ये क्या है, ये क्लोरीन गैस बन के तैयार है। फाइन। तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, एक रिलीज कर रहा है एंड द अदर वन इज गेनिंग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं, द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस at the two electrodes at the two electrodes in an electrolytic cell, electrolytic cell। ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग देख सकते हैं कि कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है। ठीक है, कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका हो सकता है, पॉजिटिव एंटिटीज का। क्यों, बिकॉज रिडक्शन इज व्हाट, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो पॉजिटिव एंटिटीज है वही इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी नेगेटिव है, जो एंटिटीज ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज एक्वायर किए हुए हैं, वो तो और इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करने का टेंडेंसी रखेंगे। ठीक है, जो पॉजिटिव एंटिटीज है वही ट्राई करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें, वही इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, गेन कर सके। तो हम लोग कह सकते हैं कि एट कैथोड ऑलवेज द मेटल इज इवॉल्व, या फिर हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। हाइड्रोजन गैस का क्यों यहाँ पे कंटेक्स्ट आ रहा है, बिकॉज हाइड्रोजन, इफ आई ब्रेक डाउन दिस HCl in, if I consider HCl as to be the electrolyte, then when electricity will pass through this HCl, this will get dissociated as H plus and Cl minus. तो ये जो H plus है, this is actually a cation, and this will try to acquire one electron and become hydrogen gas. तो हम लोग क्या लिखेंगे, at anode, sorry at cathode हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, metals और H2 gas, whereas at anode, एनोड में हमें नॉन मेटल्स मिलेंगे, एंड दिस इज फिक्स्ड। ओके, दिस विल नेवर वैरी, दिस इज फिक्स्ड। एट कैथोड वी विल ऑलवेज गेट व्हाट, मेटल, और एनोड में हमेशा हमें क्या मिलेगा, जैसे हम देख सकते हैं इसमें एनोड में हमेशा हमें नॉन मेटल्स, नॉन मेटालिक गैसेस, नॉन मेटल्स, यही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो दिस इज अ स्टार मार्क पॉइंट, दिस इज अ स्टार मार्क पॉइंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट, नाउ द फोर्थ पॉइंट, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, just writing here, fourth point, fourth point is what, redox reaction, redox reaction takes place simultaneously, 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 that means in case of an electrolytic cell, redox reaction जो है वो basically oxidation and reduction, I should be writing here, not redox reaction, redox reaction itself is reduction and oxidation. You can change this way, oxidation and reduction takes place simultaneously. How, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वेयर, कैथोड में सोडियम क्या हुआ, सोडियम का जो आयन था, सोडियम बीइंग अ कैटायन हैज माइग्रेटेड टू दिस कैथोड, कैथोड में माइग्रेट करने के बाद इट हैज गेन्ड वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को उसने गेन कर लिया, और वो क्या अंडरगो किया, रिडक्शन अंडरगो किया। whereas this chloride ion has migrated to this anode and has lost and has released or lost one electron to become chlorine gas। ठीक है, वो क्लोरीन गैस में बन के तैयार है। तो हम लोग देख सकते हैं कि रिडक्शन भी हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एट वन इलेक्ट्रोड, एट वन इलेक्ट्रोड, सपोज दिस इज वन इलेक्ट्रोड एंड दिस इज अनदर इलेक्ट्रोड, तो एक इलेक्ट्रोड में रिडक्शन हो रहा है, दूसरे इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली हो रहा है। एंड ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस थिंग, दैट एट कैथोड ऑलवेज, ऑलवेज रिडक्शन विल टेक प्लेस, whereas at anode always, हमेशा, oxidation will
takes place. ठीक है? Any doubt till here? Whoever is watching, just tell me if you have any kind of doubt. You people can ask me. Also share this session with your friends, with your known ones. Any doubts till here? ठीक है, fine. Now let's move to the electrolytic dissociation. Dissociation we all know. What is dissociation? To break. Dissociate means to break and associate to join. ठीक है? तो electrolytic dissociation, why are we talking about, why are we emphasizing on this electrolytic dissociation? Means electricity के presence में things or compounds or entities are getting dissociated. ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कंपाउंड्स आर गेटिंग डिसोशिएटेड. जैसे अभी हम लोग जस्ट एग्जांपल लिए NaCl का. व्हेन इट हैज गॉट एक्सपोज टू इलेक्ट्रिसिटी या फिर इनका उसे इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस किया गया, दिस हैज ब्रोकन डाउन इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस. ठीक है? तो डिसोशिएशन है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोशिएशन है क्या? द प्रोसेस ड्यू टू विच एन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, कोई ionic compound. Now what is ionic compound? NaCl is an ionic compound. How is it an ionic compound? Because these were first converted into ions. जैसे हम लोग ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं that NaCl ऐसे randomly नहीं formed हो गया है. ये first of all ये जो सोडियम है, this would have definitely lost one electron to become Na positive and chlorine would have gained the same electron to become chlorine negative. अब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज एंड इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया. बीइंग नाउ दे आर एक्टिंग लाइक अ पोलर एंटिटीज, दो ऑपोजिट पोल्स. इनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहा है जिस कारण आपस में ये जुड़े हुए हैं. बट अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हम लोग प्रोवाइड किए, ये टूट गया इनटू आयंस. तो पहले भी ये आयोनिक, ये पहले भी आयंस के फॉर्म में ही थे, बट ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे वर जॉइंड टुगेदर एज अ होल, एज अ कंपाउंड. ठीक है? तो ये क्या है, इन ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड दैट डिसोशिएट इनटू आयंस in either molten or in aqueous solution. This line is very important. These two keywords are very important. ये electrolytic dissociation चाहे तो aqueous solution में हो सकता है या फिर molten state में ही possible है. Okay? It can either occur in molten state or aqueous solution only. Fine. अब हम लोग NaCl का ही डिसोशिएशन देखेंगे इन थ्री स्टेट्स. इन थ्री स्टेट्स हम लोग तीन स्टेट्स में NaCl का डिसोशिएशन देखेंगे. फाइन. ठीक है? कम ऑन, शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स, विद योर नोन वंस. ओके, सबसे पहले नाउ व्हाट वी हैव टॉक दैट इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स कैन नॉट डिसोशिएट इनटू constituent ions in solid state. Solid state में कभी भी if I talk about the metallic conductors, तो metallic conductor solid state में ही conduct करता है, इलेक्ट्रिसिटी को solid state में ही conduct कर रहा है. Stream of electrons को it is sorry, it is basically allowing the stream of electrons to pass through its cross section area. लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स में व्हाट हैपन कि वो सिर्फ और सिर्फ आइदर वो एक्वस सोल्यूशन में है, यानी कि अगर पानी के सोल्यूशन में वो एग्जिस्ट कर रहा है या फिर मोल्टन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तभी हम लोग देख सकते हैं कि यस इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. सॉलिड स्टेट में इट कैन नॉट. अब उसके पीछे भी एक रीजन है दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड राइट नाउ. जैसे अगर हम लोग NaCl का हम लोग यहाँ पे सॉलिड स्टेट में डिस्कस करते हैं. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. This is the first case.
NaCl existing in solid state, सॉलिड स्टेट में NaCl एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो व्हाट हैज हैपेंड कि ये प्रीवियसली आयन थे. This was what sodium was actually. This has converted, got converted first as an as a cation, and this must have got converted as an anion at first. Now what has happened, this is this has acquired positive charge over it, and this chlorine has acquired negative charge over it. अब इनके बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है जो कि आपस में, even if the electricity is passing, it is so strong, this bond is, this force is so strong that it will not allow the electricity to pass through it and break the compounds into constituent ions. But अब होता क्या है, जैसे ही हम लोग इसको पानी में डाल दिए, as soon as we dissolve this NaCl, now we are going to see the second case, that is in aqueous solution. We generally look for three cases: one solid state, aqueous solution, and the molten state. ठीक है, तो first हम लोग solid state देख लिए. Second one is aqueous solution. If I have prepared now an aqueous solution of NaCl, so what I will be doing is, I have taken a beaker. यहाँ पे हम लोग water ले लेंगे, पानी ले लेंगे. We are going to pour water and then an electrolyte. The electrolyte here is our NaCl. Now this NaCl, when we have poured this in the water, now this is basically an aqueous solution. This has become an aqueous solution of NaCl. Okay, this is no longer a solid. This is no longer in solid state. But now this has become what? This has become an aqueous solution of sodium chloride. अब होगा क्या, हमें पता है अब कि जैसे ही एक्वस सोल्यूशन में हम लोग, जैसे ही हम लोग NaCl का एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, आयंस डिसोशिएट हो जाएंगे इनटू, इसके अंदर जो आयंस है वो बेसिकली जो NaCl है, दिस इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड. नाउ दिस विल ब्रेक डाउन इनटू कंस्टिट्यूएंट आयंस, दैट इज Na प्लस एंड Cl माइनस. तो व्हाट विल हैपन, अब ये aqueous solution में ही क्यों पॉसिबल है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. This water is what, this water is a polar compound. Okay, this water is what, this water is actually a polar compound. So what will happen कि पानी में, in water, इस हाइड्रोजन के पास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट वी रिप्रेजेंटेड विद डेल्टा. पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अगर हमें शो करना है तो हम डेल्टा से शो करते हैं. डेल्टा, दिस साइन इज एक्चुअली ऑफ डेल्टा. एंड ऑक्सीजन पे एक पार्शियल पार्शियल चार्ज होता है, डेल्टा नेगेटिव. अब हाइड्रोजन बीइंग हैविंग partial positive charge, अब ये क्या करेगा, being a positive entity, this will try to attract or pull the chloride ions. ठीक है, and this oxygen being negative, partially negative, being partially negative, this will try to pull the sodium, that is सोडियम आयन को वो पुल करने का ट्राई करेगा. ठीक है, जिस कारण क्या होता है कि ये जो NaCl है, दिस हैज गॉट डिसोशिएटेड एज Na प्लस एंड Cl माइनस. दिस हैज बीन पॉसिबल, दिस थिंग वाज पॉसिबल जस्ट बिकॉज कि हम लोग पानी में डालें. अगर पानी में हम लोग नहीं डालते, स्कैको सोल्यूशन नहीं बनाते, तो हमारा डिसोशिएशन, बेसिकली NaCl का डिसोशिएशन नहीं पॉसिबल हो पाता. ठीक है, फाइन फाइन. ठीक है, now let's move to, so what we have discussed here. Hello. ठीक है, so what we have discussed in aqueous solution, when, what is aqueous solution? Aqueous solution is nothing but when we put the components inside water, that particular solution is called as aqueous solution. Aqua means water. Aqua means what? Water. ठीक है, तो aqueous solution में क्यों electrolytic conduction हो सकता है? Because water is what? A polar compound. Water is what? It is a polar compound, right? What is it? It is a polar compound. Or being a polar compound, this water has partial positive charge over, the hydrogen has a partial positive charge
and this oxygen has a partial negative charge. So be having a partial positive charge, this will actually pull the chloride ions. ठीक है? And this oxygen will pull the sodium ions. This oxygen will pull the sodium ions. And finally what will happen is Na plus and chlorine negative में ये dissociate कर जाएगा. Let's talk about the molten state. Let's talk about the molten state. Fine, fine. Any doubt till here? Ma'am, who are you? What to reply? Who am I? Anyways, okay. Now we are going to check how things get dissociated in molten state. So what do we understand by molten state? Molten किसी भी चीज को हम लोग मेल्ट कैसे कर सकते हैं? By providing temperature, right? We provide temperature. If we provide temperature, some compounds get melted. ठीक है? तो molten state में हम लोग क्या देख सकते हैं? What happens basically? We know that this is actually existing as an cation and this was existing as an anion. इनके आपस में क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हुआ जिस कारण ये आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो गए टू फॉर्म अ यूनिट कंपाउंड. एक यूनिट कंपाउंड में ये बन के तैयार है. फाइन, ये यूनिट कंपाउंड में बन के तैयार है. नाउ इफ वी प्रोवाइड टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन? दिस temperature will try to weaken this temperature will try to weaken the force electrostatic force that exists between Na plus and Cl minus. Fine, ठीक है? This electrostatic force will try to weaken this temperature. When after applying the temperature, it will try to weaken the electrostatic force that is between so Na positive and Cl negative. तो फिर क्या होगा? वीकन होने के बाद बॉन्ड टूटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एंड दिस विल गेट डिसोशिएटेड एज Na positive and Cl negative. Okay, Cl negative. Fine. Okay, ठीक है. तो हम लोग क्या देखें? फाइन, यहाँ तक क्लियर है? फाइन, ठीक है. So basically our first part is completed. In electrolysis we have total 3 parts. The first part is completed. Fine. Next class we are going to check with the second part. Fine. Till that, tomorrow I'm going to take the live class and we are going to start with the second part, that is the electrolytic mechanism, the full mechanism, how the ions get dissociated, किस तरह से compounds बनते हैं, किस तरह से constituent ions बनते हैं, everything we are going to look into that. This was the fundamental. Okay, this was the basis of the chapter. So once you have understood these things, then you will be able to form the equations as well. Okay, bye bye. Have a nice day.